Good morning student. In previous video we have seen the information high cloud, medium cloud and low cloud. So previous video we have seen the information of three clouds of low cloud. Okay, today we will see remaining two clouds. So two means which are the two clouds. All of you know the height of the altitude of low cloud is less than 2000 meter. So okay, so we will see today cumulus cloud, page number 22. These clouds are formed extensively from 500 meter to 6000 meter altitude. ओके, ये जो क्यूमुलस क्लाउड है इसका हाइट कितना होता है 5000 मीटर से 6000 मीटर तक उसकी हाइट होती है. द वर्टिकल फ्लो ऑफ द एयर एट द फॉर्मेशन ऑफ दिस क्लाउड. सो ड्यू टू द वर्टिकल फ्लो, ओके, जो एयर का जो फ्लो है वो कैसा रहता है वर्टिकल. ओके, दैट्स व्हाई दे आर एड, दैट्स व्हाई द एयर, जो एयर है ओके हुआ है एडेड द फॉर्मेशन ऑफ दिस क्लाउड. ओके, तो उस एयर की वजह से इस बादल का निर्माण होता है. दीज आर ह्यूज एंड डोम शेप. दिस क्यूमुलस क्लाउड आर वेरी कैसे ह्यूज, बहुत बड़े क्लाउड है और उसका शेप कैसा है डोम शेप. ओके, यू नो ऑल ऑफ यू आर सीइंग डोम टाइप. ओके, दे आर ग्रे इन कलर और उसका क्यूमुलस क्लाउड का कलर कैसा है ग्रे. Cumulus clouds are an indicator of pleasant weather. Okay, and due to the cumulus cloud is indicator of pleasant weather. Okay, weather कैसा होता है एकदम pleasant. अगर cumulus cloud okay बादल छाए हुए हैं okay तो उसकी वजह से क्या होता है pleasant weather create होता है. The vertical expanse of this cloud increase too much that they turn into the cumulonimbus cloud and bring rain. So vertical expanse of the cloud. So due to the vertical flow of airs, you know, air add in this cumulus cloud. That's why the vertical expanse of this cloud increase. तो जो vertical expanse है वो increase मतलब वो बढ़ जाता है and too much that they turn. That's why this cumulus cloud turn into the cumulonimbus cloud. So okay, being the due to the vertical flow of air, due to the vertical flow of air, this cumulus cloud change, turn into the cumulonimbus cloud and bring rain. Actually cumulus cloud is a indicator of pleasant weather, okay, but due to the vertical expanse of these clouds, उसका जो वर्टिकल एक्सपांस है वो ज़्यादा बढ़ जाता है और उसकी वजह से वो इसमें टर्न होते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड एंड दे ब्रिंग रेन. लास्ट क्लाउड इज अ विल सी इंफॉर्मेशन cumulonimbus cloud. These are the characteristic cloud which are indicator of thunderstorm. So okay, cumulonimbus cloud, these are the indicator of thunderstorm. Thunderstorm. Okay, these look like a huge mountain and these clouds are look like a huge mountain. बहुत बड़े बड़े पहाड़ जैसा ये clouds, ये बादल दिखता है. Which cloud? Cumulonimbus. These are dense and dark in color. ये बहुत घना हुआ रहता है, घने ओके, घना बादल and dark in color. There is thunder accompanied by lightning. और ये अपने साथ में थंडर ओके बहुत बड़े बड़े आवाज़ करता है एंड लाइटनिंग भी उसके साथ में रहती है. They bring rain with storm and make sometime bring hailstone. और उसकी वजह से due to the cumulonimbus cloud they bring rain and may sometime bring hailstone. और उसकी वजह से कभी कभी हेलस्टोन भी गिरता है, उसको बोलते हैं ओले. बट सच अ टाइप रेन डज नॉट लास्ट लॉन्ग. बट ये जो बादल है उनकी वजह से ज़्यादा देर तक बारिश नहीं होती. बट दीज क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड ब्रिंग थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग एंड एज वेल एज दे ब्रिंग हेलस्टोन. द लार्जेस्ट ऑफ दिस क्लाउड ब्रिंग रेनफॉल. The largest of this cloud bring rainfall accompanied with lightning. ओके, और उसके साथ में कभी कभी लाइटनिंग होती है. ओके, बिजली ओके यू नो बिजली आती है ओके बादल में. ओके, द टॉप पोर्शन ऑफ दिस क्लाउड हैव एन अवेल लाइक अ शेप. सो उसका जो टॉप पोर्शन है इस बादल का ओके अवेल लाइक अ शेप, अनवेल लाइक अ शेप मतलब वो अनवेल लाइक अ शेप, वो बहुत बड़ा दिखता है. द क्लाउड्स हैव पॉजिटिव चार्ज एट द अपर एंड नेगेटिव चार्ज एट द लोअर एंड. ये जो बादल है इस बादल क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है उसका जो अपर है मतलब उसका जो आगे का पोर्शन है उसको पॉजिटिव चार्ज है एंड द एंड चार्ज है
उसको निगेटिव चार्ज होता है। ओके, द लैंड बिलो देम ऑलवेज हैव निगेटिव चार्ज, और जो उसका जो लास्ट मतलब एंड पोर्शन है वो निगेटिव चार्ज होता है। दैट्स व्हाई द लैंड बिलो द ऑलवेज हैव निगेटिव चार्ज ड्यू टू द डिफरेंस इन द चार्ज इलेक्ट्रिक चार्जर आर फॉर्म एंड लैटनिंग ऑकर। ओके, लैटनिंग ऑफ द स्काई फॉर्म। ओके, उसकी वजह से मतलब स्काई की तरफ उसका पॉजिटिव चार्ज रहता है और अर्थ की तरफ क्या निगेटिव चार्ज रहता है। ओके, एंड ड्यू टू दैट ओके समटाइम्स द लाइटनिंग ऑकर स्काई हर मोमेंट। ओके, हर मोमेंट कुछ देर के लिए लाइटनिंग हो जाती है। द एयर अराउंड द लाइटनिंग राइज अप बिकॉज ऑफ द हीट। सो एयर अराउंड द लाइटनिंग ओके एयर भी उसके सामने होके आगे पीछे घूमती है, राइज अप बिकॉज ऑफ द हीट ओके उसके हीट की वजह से, एंड दिस लीड टू अ लार्ज थंडरिंग साउंड, और उसकी वजह से लार्ज थंडरिंग साउंड थंडर ओके बहुत बड़े बड़े वो आवाज़ भी आते हैं ओके बादल में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओके वी हैव सीन दिस क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड ब्रिंग थंडरस्टॉर्म, lightning and hailstone because they due to the okay now I have told you their upper portion have positive charge and lower portion is negative charge. That's why on the earth okay they create a negative charge, that's why they create their lightning. As compared to other cloud, the raindrop of these clouds are larger because they move up and down a lot of times and accumulate more and more water. So as a compare of other clouds, the raindrop of this cloud is very large. If we compare other all this cloud, अगर हम दूसरे क्लाउड्स के अगर कंपेयर करते हैं तो इस क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड के जो रेनड्रॉप होते हैं वो बहुत बड़े बड़े ओके मतलब बहुत लार्जर होते हैं, बिकॉज दे मूव अप एंड डाउन लॉट ऑफ टाइम्स, बिकॉज वो बादल में ऊपर ही वो आगे पीछे होकर मूव अप एंड डाउन हो जाते हैं एंड एक्यूमुलेट मोर एंड मोर वाटर, एंड वो बहुत ज़्यादा पानी को क्या करते हैं एक्यूमुलेट करते हैं. दैट्स वाई ओके ड्यू टू दैट you can say due to the more and more water drop become larger and larger and are unable to float in the clouds. So when they float in the sky okay due to the accumulation of water okay the size and the weight of the cumulonimbus cloud become larger and heavier. उसका साइज क्या होता है बहुत बढ़ता है, उसका वेट भी ज़्यादा क्या होता है हेवियर होता है. ड्रॉप बिकम लार्जर एंड अनेबल टू फ्लोट, दैट्स व्हाई दे आर अनेबल टू फ्लोट. जब उसका वेट कम होता है वो स्काई में फ्लोटिंग करते हैं, बट ड्यू टू द वाटर ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर देयर साइज एंड वेट इंक्रीज and because their weight they fall in the form of rain, that's why they fall in the form of rain or at last they fall in the on the earth. Sometimes the air in the clouds is very cold, कभी कभी उस बादल की वजह से जो हवा आती है वो बहुत ठंडी होती है, बहुत कोल्ड होती है. एज अ रिजल्ट दिस ड्रॉप फ्रीज एंड फॉल इन द फॉर्म ऑफ हेल, और उसकी वजह से कभी कभी वो क्या होता है उसका ठंडी हवा मतलब ड्यू टू द लो टेम्परेचर द एयर बिकम कोल्ड एंड इन द कोल्ड एयर दैट वाटर ड्रॉपलेट बिकम इन विच इन आइस पार्टिकल. ओके दैट्स व्हाई ड्रॉप फ्रीज, वो ड्रॉप क्या हो जाते हैं फ्रीज हो जाते हैं एंड फॉल इन द फॉर्म ऑफ हेल, और वो किसके फॉर्म में नीचे आ जाते हैं हेल ओले. सो वी कॉल देम, उसको हम क्या बोलते हैं हेल स्टोन, उसको क्या बोलते हैं हम हेल स्टोन. सो ओके डियर स्टूडेंट टुडे वी हैव सीन the high clouds, medium cloud and low cloud. Okay, all this information okay I was seen today's video. So in this way we finish the third lesson. Okay, and one homework is to you. Okay, you have to write all these question answer okay in your workbook. Okay, and you have to send the answer in homework group of geography. Okay, thank you.